Welcome all of you once again. It's one of the past sessions that we had done earlier. So let's dive right in without wasting any more time. Usability is a concept of user using something. तो आप अगर कोई ऐप बनाते हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं, इट नीड्स टू बी यूजेबल. हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, इट नीड्स टू बी यूजेबल. व्हाट इज यूजेबिलिटी? यूजेबिलिटी इज द attribute of something being usable by the users easily and friendly. User friendliness भी हमने सुना है, यूजर एक्सपीरियंस भी हम सुनते हैं. तो अलग अलग टर्म्स हम सुनते हैं: यूजर रिसर्च, यूजर एक्सपीरियंस, यूजेबिलिटी, यूजर फ्रेंडलीनेस एंड सो ऑन. तो ये स्टीव क्रग का एक फेमस बुक है, डोंट मेक मी थिंक. वन ऑफ द फेमस बुक्स, even called as a syllabus book by some people. It is taught in some UX courses. तो यूएक्स पे एक बुक है, उसके ऊपर हमने कुछ आइडियाज इसमें से लिए. लेट्स गेट राइट इनटू इट. एंड द सेशन टुडे इज सपोज्ड टू प्रोवाइड यू सम आइडिया ऑफ यूजेबिलिटी एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट एंड हाउ टू अप्लाई यूजेबिलिटी. व्हाट आर द एसेंशियल प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन यूजेबिलिटी. कैसे हम यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं चीजों को, क्योंकि हम बहुत सारी चीजों पे काम करते हैं, राइट. प्रोडक्ट्स बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, और हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज भी करते हैं. वी डाउनलोड सो मेनी एप्स, we go to the market, we look at aisles, we look at shelves, we look at a lot of products, right? So we quickly understand, we understand whether the product is good or bad, whether the design is good or bad, and so on. Why are things always in the last place you look for them? Because you stop looking when you find them, right? So it's kind of a joke for you. You can say usability joke. तो कोई वेबसाइट पे अगर कुछ ढूंढ रहा है, समझो, somebody is finding, let's say, contact form on the website or some email ID on the website, और उसको ढूंढने में 10 मिनट लग गए. तो लास्ट प्लेस पे क्यों मिलता है वो चीज? बिकॉज इट्स वन, इट्स नॉट प्रॉपरली डिजाइन. टू, he will, the user stops looking after he finds it. So it's a usability joke. Let's get into what is usability. Let's start with the definition, like we always do, to give you some context of what it means. So usability has been associated with various terms. कुछ टर्म्स मैंने आपको बताए अभी, जैसे यूजर फ्रेंडलीनेस फॉर एग्जांपल. ओके, some more terms are given here. There is a definition, nice, that we will read through and understand. And then we read on point number 1 here, that you see, we read some of the attributes of usability, or one word definitions of usability, one word synonyms of usability. So whether your website is usable, then that means it is useful. You can also say it is learnable, it is memorable, effective, efficient, and also desirable, or let's say delighting or delightful. तो ये सारे वर्ड्स सिनोनिमसली यूजर एक्सपीरियंस वर्ल्ड में यूज होते हैं. तो जब कोई कहता है आई नीड द वेबसाइट टू बी मोर यूजफुल, ही इज टॉकिंग अबाउट यूजेबिलिटी. ही इज टॉकिंग about some other attributes of the app or website, let's say, that it needs to be learnable, well designed, memorable, effective, efficient, then he is also talking about usability. Usability is the umbrella word or generic word or the family of words जिसमें ये सारे concepts आ जाते हैं. तो आप जब usability पे काम करते हैं, you need to be thinking about all these things. So whether your website is not effective, then it will score less, it will fare less on the usability score. Is it delighting to the customers? Yes, of course. Then you fare good on usability score. If it's not, it will fare low on the usability score. ये कुछ कीवर्ड डेफिनेशंस हमने देखी यहाँ पे. अभी हम एक फुल डेफिनेशन भी देखते हैं. तो यूजेबिलिटी का मतलब क्या हो सकता है? अ पर्सन ऑफ एवरेज और बिलो एवरेज इंटेलिजेंस और एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस कैन फिगर आउट हाउ टू यूज समथिंग without it being more trouble than it's worth. तो 10 रुपए का चाट खरीदा आपने और 20 रुपए का मसाला डाला उसमें लेके. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. या, है ना, हम एक ऐसे कहावत सुनते हैं, ऐसे कोट सुनते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट आइटम है, जो सेकेंडरी आइटम है, जो साइड डिश है, वो मेन डिश से महंगा नहीं होना चाहिए, है ना. हम घर खरीदते हैं तो घर जितने अमाउंट का घर है उससे ज्यादा डेकोरेशन नहीं करते उसमें. So the idea is without it being more trouble than it's worth.
आप कुछ कॉन्टेक्ट फॉर्म ढूंढने गए वेबसाइट पे, जो कि 2 मिनट का काम था, आप किसी के वेबसाइट पे जाते हैं, आपको ईमेल ढूंढना था, एंड इफ इट टुक यू 15 minutes, तो 15 minutes of your crucial, powerful, important time just to find a simple email ID which you could have actually googled around and found it in 1 second, क्योंकि गूगल 1 सेकंड में रिजल्ट दे देता है। तो आपने अगर 15 मिनट वेस्ट किए, देन somebody's वेबसाइट इज नॉट यूजेबल, देन इट्स नॉट यूजेबल एट ऑल। सो यूजेबिलिटी का ये भी डेफिनेशन क्लियरली हम समझ रहे हैं क्या है, कि कोई भी एवरेज पर्सन और बिलो, इवन बिलो एवरेज एबिलिटी, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी रूल्स भी हम देखेंगे आगे, तो एवरेज और बिलो एवरेज पर्सन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वेबसाइट्स के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में, या ज्यादा नेट सेवी भी नहीं है बंदा या बंदी, उसको भी ये फिगर आउट होना चाहिए जो भी वो ढूंढ रहा है वेरी क्विकली, नॉट स्पेंडिंग मोर टाइम देन इट्स वर्थ। ये भी यूजेबिलिटी का डेफिनेशन है, इट्स वेरी की टू अंडरस्टैंड। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ना, ये यूजेबिलिटी है या यूजर डिजाइन है, ये ऐसे क्लियरली हम ले आउट नहीं कर सकते हैं कि A B C D E फॉलो करो, है ना। डेफिनेटली देयर आर रूल्स, वी विल सी देम इन अ मिनट। कुछ ऐसे रूल्स भी हैं जो आपको फॉलो करने हैं, लेकिन दे आर मोर ऑफ माइंडसेट। यूजर एक्सपीरियंस इज अ माइंडसेट। यूजर एक्सपीरियंस इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ यूजर थिंक्स, गेट इनटू द शूज ऑफ द यूजर। तो ये डेफिनेशन हमें बताते हैं कोई चीज यूजेबल होना या नहीं होना का क्या मतलब होता है। ठीक है, क्लियर? So let's get further. We saw the definition. Now we are getting into some of the principles or guidelines of usability. तो यूजेबिलिटी क्या कहता है, यूजर क्या कहता है, पहला प्रिंसिपल क्या है यूजेबिलिटी का, यू कैन कॉल इट इवन एज द फर्स्ट प्रिंसिपल, इज डोंट मेक मी थिंक। डोंट मेक मी थिंक मतलब मुझे सोचने को मत लगाओ। यूजर अगर कोई वेबसाइट देख रहा है, यूजर अगर गूगल कर रहा है, आपकी वेबसाइट पे लैंड हो रहा है, गूगल आपका आपका गूगल करके आपके ऐप पे आ रहा है कोई, है ना, या कोई साइन बोर्ड देख रहा है। हाँ, ऐसे कितने सारे साइन बोर्ड्स हम देखते हैं, हम कार में ड्राइव करते हैं, कार में ट्रैवल करते हैं, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, इतने सारे बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स, एडवर्टीजमेंट्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं, मैगजीन्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। तो कई सारे हम समझ पाते हैं तुरंत, है ना। कुछ एडवर्टाइजमेंट झट से समझ में आ जाते हैं हमें कि क्या चल रहा है, बिल बोर्ड पे लिखा है, तुरंत फोटो देख के या बड़े बड़े वर्ड्स देख के हमें समझ में आ जाता है। बट मोर देन 60-70% ऑफ एडवर्टीजमेंट्स हमें समझ में नहीं आते। करेक्ट? तो सोचना पड़ता है, उसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि अरे क्या है ये, मतलब हाउ टू डिकोड दिस। सडनली यू गेट इनटू अ माइंड ऑफ थिंकिंग, सडनली यू स्टार्ट्स फीलिंग इट्स मोर ट्रबल देन इट्स वर्थ, तो आप छोड़ देते हैं बिकॉज उसको सोचने में 10 मिनट लगेंगे, समझने में तो आप वो एडवर्टीजमेंट्स की तरफ से ध्यान हटा लेते हैं। यू डोंट वांट टू वेस्ट योर क्रूशियल टाइम एटलीस्ट एट ऑल टाइम्स। हमेशा आप उतने फ्री नहीं होते कि आप उसको डिकोड करना। इफ इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, तो आप उसमें ज्यादा टाइम स्पेंड करके भी आप निकालेंगे, बट देन यू विल स्टिल कर्स द पर्सन हु क्रिएटेड द एडवर्टाइजमेंट इन द फर्स्ट प्लेस, और यू विल कर्स द डिजाइनर हु डिडंट पे गुड अटेंशन टू द यूजेबिलिटी। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूजेबिलिटी सेज डोंट मेक मी थिंक। ठीक है, यू शुड बी एबल टू जस्ट फिगर इट आउट, you should be able to just get it without knowing what it is, without knowing and how to use it. So you should be able to get it, है ना, समझ में आना चाहिए। वेबसाइट को देखा, अब हम, हमारा वेबसाइट है, ठीक है, कोई होम पेज पे आता है, स्क्रॉल करता है, तो उसको समझ में आना चाहिए व्हाट वी डू, हाउ वी डू इट, rather than he or she being confused for 30 minutes कि अरे क्या चल रहा है, या 10 पेज हमारे देखने के बाद समझ में आया अरे ये क्या करते हैं, then it's a pain point for us, then it's a bad usability design from us, right? So the user should be able to get it without getting into deep thinking, or without getting into too much thinking, without expending too much effort to think about it. That's one of the first guidelines or principles of usability. Second principle you can say is eliminate question marks. What is eliminating question marks? Again, when he gets into thinking, तो यूजर जब कोई वेबसाइट देखता है या ऐप देखता है ना, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो ये सब हमने एक्सपीरियंस किया है, आप अगर ध्यान से यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई ऐप देख रहे हैं तो देखो, लोगों को तुरंत, आपने गूगल किया, यू वर लुकिंग फॉर समथिंग, यू सडनली लैंडेड ऑन अ ऐप और अ वेबसाइट। ठीक है, अब वहां पे आने के बाद हम क्या सोचते हैं, इफ द वेबसाइट इज नॉट डिजाइन वेल, यू गेट ऑल दिस क्वेश्चन मार्क्स, राइट? वेयर एम आई, पहला क्वेश्चन है कि कहाँ आ गया मैं, कौन से वेबसाइट पे, किसी ऐड पे क्लिक किया, यूआरएल 3 बार रीडायरेक्ट हो रहा है, यू आर स्टिल वंडरिंग कहाँ जा रहा हूँ मैं, कौन से वेबसाइट पे लैंड कर रहा है मुझे, ये स्कैम तो नहीं है, फेक तो नहीं है ना, वायरस तो नहीं है।
ट्रस्टवर्दी है क्या, HTTPS दिख रहा है क्या, इज इट लॉग्ड, इज इट नॉट, देन वेयर शुड आई बिगिन। आप वेबसाइट पे आ गए और आपको सडनली यू स्टार्ट सीइंग 15 बैनर्स ऑन द होम पेज, देन यू स्टार्ट वंडरिंग कि अरे क्या करूं मैं, बिकॉज यू केम विद अ पर्टिकुलर पर्पस। जैसे मैंने बताया कि समवन हैज अ पर्पस इन माइंड, व्हेन समवन इज गूगलिंग they may need to find a number, they may need to find an email address, they may need to look for a product, they may need to look for a bargain or a coupon code or anything else for that matter, or some information specific. So user has a specific goal in mind, user does not have a lot of time. So when he lands or she lands on the website, and if the website is not usable or well designed, then suddenly user gets into all these question marks mind. तो ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑन दिस पेज, व्हाई डिड दे कॉल दैट, व्हाई दैट एड और अ पार्ट ऑफ वेबसाइट। तो कई बार ऐसा होता है हमारे साथ भी, हम ब्लॉग्स पे जाते हैं, गूगल करते हैं, नेविगेट करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो बहुत सारे ब्लॉग्स पे एड्स आते हैं, राइट। a lot of people want to earn by Google ads and other ads and affiliate ads, right? तो हम क्लिक करने से पहले कई बार हमें लगता है कि अरे ये ऐड है या नहीं, या क्लिक करने के बाद समझ में आता है कि ये ऐड है, ये किसी और वेबसाइट पे ले जा रहा है और इट्स अ स्पॉन्सर्ड लिंक। समटाइम्स वी केयर, समटाइम्स वी डोंट, बट देन व्हाई डिड दे पुट दिस हियर, व्हाई डिड दे पुट दैट, some kind of these kind of question marks come into users mind. What is the job of usability designer or UX guy or usability engineer or consultant is to eliminate these question marks as much as possible. तो आपने पेज खोला, स्क्रॉल किया, आपको तुरंत समझ में आ गया कि यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, कॉल टू एक्शन ये है, ये डिफाइन इस तरह से हो रहा है, दिस इज अ बैनर, दैट इज एन एड, है ना, फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिबिलिटी. So we saw the first principle, don't make me think. We saw another one, eliminate question marks. Then we'll see some self-evident details along with these principles and some more principles. सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है खुद से एक्सप्लेन करना, खुद से दिख जाना। जैसे मैंने बताया कि द पेजेस शुड बी सेल्फ एविडेंट। सेल्फ एविडेंट मतलब एविडेंस ऑफ इट्स ओन पर्पस। तो एक वेबसाइट है और फिर एक और वेबसाइट है जो उसका यूजेबिलिटी मैनुअल है। हमको पता है, राइट, हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल आता है और वो मैनुअल देख के कई सारे लोगों को चक्कर आ जाता है। some people are good with manuals, some people some folks are not good with manuals. तो कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं वो सब चीज़, how to do or assemble a product, ठीक है। some of us may be very good with that, but some of us are not, absolutely not. तो क्यों होता है ये? क्योंकि एक प्रोडक्ट है और फिर एक उसका मैनुअल है, दो चीजें हो गई नहीं। तो प्रोडक्ट क्या करता है वो समझने के लिए पहले मैनुअल पढ़ना पड़ता है, और मैनुअल और प्रोडक्ट में फर्क है बहुत। तो मैनुअल में लिखा है दिस इज वेयर द नट एंड बोल्ट गो, तो फिर आप प्रोडक्ट को लेके ढूंढते हैं ये नट एंड बोल्ट कहाँ पे मुझे डालना पड़ेगा, राइट। फोटो देख के समझ में नहीं आता कई बार, बिकॉज इट्स अ 2D फोटो, इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, इट्स अ इंजीनियरिंग टेक्निकल फोटो, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस विद मैनुअल्स। तो वेबसाइट के लिए मैनुअल नहीं लगना चाहिए। अगर आपने वेबसाइट बनाया है और फिर वेबसाइट को समझाने के लिए कोई नॉलेज बेस लगता है या मैनुअल लगता है कि यहाँ पे क्लिक करो, वहां पे क्लिक करो तो ये होगा, देन इट्स अ बैड यूजेबिलिटी डिजाइन। सेल्फ एविडेंट का मतलब होता है इट डजंट रिक्वायर अ सेपरेट मैनुअल, इट डजंट रिक्वायर अ यूजर मैनुअल टू यूज पर से। आपके पास प्रोडक्ट आया, द प्रोडक्ट इज सो वेल डिजाइन दैट इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आपने खोला आईफोन, एक ही बटन है उस पर प्रेस किया, स्टार्ट हो गया, एंड देन आईफोन गाइड्स यू फर्दर, welcome, hello, click here to set your date and time, click here to set your language, click here to set up your touch id, click here to set up your emergency, blah blah blah, ding dong ding, चालू हो गया। तो वन बटन, तो और कुछ है ही नहीं ना, ऑप्शन ही नहीं है और कुछ दबाने के लिए। So it is self-evident. So it's a good design, example of good design. Similarly, your website, your products, our portals, apps, and all the other physical, tangible, digital products should be self-evident. Another great example of, or you can say principle of usability. If you are doing something groundbreaking or extraordinary, you can settle for self-explanatory. Self-explanatory भी second level पे आता है, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि self evident आपका aim होना चाहिए। self evident मतलब सोचने की नीड ही नहीं है, देयर इज नॉट अ लाइन ऑफ कंफ्यूजन पर से, आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है गैप कि कंफ्यूजन क्रिएट हो। इट्स सो सिंपल, सो वेल डिजाइन दैट द यूजर शुड बी एबल टू गेट इट, जैसे मैंने पहले बताया, और यूज इट इंस्टेंटली विदाउट थिंकिंग, विदाउट रेफरिंग अ मैनुअल एट ऑल।
बट अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो पहले नहीं बना है आज तक, या कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है जिसके बारे में लोगों को कुछ अफोर्डेंसेस नहीं है माइंड में, कुछ सोचा नहीं है, कुछ नॉलेज नहीं है, देन यू कैन सेटल सेटल फॉर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। मतलब आप फिर भी उसको इतना अच्छे से बनाएंगे कि वो एक्सप्लेनेटरी होगा। यानी कुछ टूल टिप्स होंगे, कुछ टेक्स्ट होगा, कुछ मैनुअल जैसी चीजें होंगी वेबसाइट पे, लेकिन वो उन चीजों के लिए अलाउड है जिनके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स फीचर्स हैं, बहुत नए फीचर्स हैं। इफ यू आर जस्ट डूइंग समथिंग रूटीन, फॉर एग्जाम्पल आपने लॉगिन फॉर्म बनाया, मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, समबडी क्रिएटेड अ लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म इज अ रूटीन, राइट? हमने हजारों लॉगिन फॉर्म देखे हैं। आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको लॉगिन करना पड़ता है, ऐप में लॉगिन करना पड़ता है, गूगल में लॉगिन करना पड़ता है, यूट्यूब में लॉगिन करना पड़ता है, पिंटरेस्ट में लॉगिन करना पड़ता है। तो एवरीवन आस्क फॉर अ लॉगिन। तो अगर आप लॉगिन फॉर्म ऐसा बना रहे हो अपने वेबसाइट का जिसको देख के लोगों को सोचना पड़ता है कि यूजर नेम किधर डालूं और पासवर्ड किधर डालना पड़ेगा और किसको चेक करना है, किसको अनचेक करना है, साइन अप किधर है, साइन इन किधर है, और उसमें 10 मिनट लगते हैं या उसके लिए मैनुअल लगता है, देन योर it's a very bad example of usability design. It should be self-evident because it's a common thing. But if you're creating something new, आप rocket science बना रहे हैं कुछ, then you can go with some tooltips, some manuals, something that will explain the product, which is self-explanatory. Still, you don't need a manual, but it should be self-explanatory. Very nice. So now let's get into how we really use the web. अभी हम एक यूजर के माइंड में एंटर करने जा रहे हैं। तो जब हम सब लोग यूजर्स बनते हैं, हम सब लोग वेब यूज करते हैं या सर्फिंग करते हैं या कोई प्रोडक्ट या कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी गूगलिंग करते हैं, तो हम कैसे यूज करते हैं? सो इट विल हेल्प अस टू रिजोनेट विद क्या क्या होता है। तो यूजर जब वेबसाइट पे जाता है तो क्या करता है? वी ग्लांस एट ईच पेज, स्कैन सम टेक्स्ट एंड क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक दैट कैचेस इंटरेस्ट और वेगली रिसेम्बल्स टू व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सपोज कोई वेबसाइट पे आया है, उसको शॉप करना है कुछ प्रोडक्ट। सपोज किसी को घर का कुछ सामान खरीदना है और उसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट या किसी ऐसे रिटेल वेबसाइट पे वो जाता है, तो वो तुरंत क्या करता है? हालांकि दीज आर वेरी कॉमन वेबसाइट्स एंड वी हैव यूज्ड देम 100 टाइम्स और एप्स, सो वी नो वेयर टू गो, राइट? बट सपोज कोई नया भी है, जैसे बिग बास्केट है, फ्राजो है, डंजो है, नदर, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो पहली बार भी आप स्कैन कर रहे हैं तो व्हाट विल डू, यू विल नॉट रीड द होल टेक्स्ट ऑन द पेज। हम क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं क्या पूरा स्टार्ट टू एंड? नहीं पढ़ते। हम सिर्फ ग्लांस करते हैं, जस्ट ऊपर से नीचे तक देखते हैं, स्किम करते हैं पेज को। थोड़ा सा एक आधा टेक्स्ट, एक आध लाइन पढ़ लिया, स्क्रॉल कर लिया, टिक टॉक टिक, यहाँ पे नहीं है, ठीक है, स्क्रॉल करो, हाँ ये थोड़ा रिलेवेंट दिख रहा है, क्लिक हियर। तो एग्जैक्टली दिस हैपेंस इन द माइंड। कभी भी ऐसा पढ़ते बैठते नहीं है हम आधा घंटा कि चलो एक प्रोडक्ट लेना है तो अब मैं पूरा अमेजोन का ऊपर से नीचे तक पढ़ता हूँ, कितने प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, ऐसा नहीं होता, राइट? सो वी ग्लांस एट द पेजेस, वी स्कैन, वी डोंट रीड, वी स्कैन, वी क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक दैट कैचेस इंटरेस्ट और वेगली रिजेम्बल्स। तो जो पहला रेलेवेंट लिंक दिखता है, हमारे काम का दिखता है, हम उस पर क्लिक करते हैं। दिस इज द फर्स्ट गाइडलाइन व्हेन द यूजर व्यूज द वेब। तो ये देखो एक एग्जांपल और यहाँ पे दिया है ब्रिलियंट, कि इट्स लाइक पासिंग अ बिलबोर्ड ऑन द रोड एट 60 माइल्स पर आवर। तो हम कार में जा रहे हैं स्पीड में, तो बहुत सारे बड़े बड़े हमें बोर्ड्स दिखते हैं, सर्विसेज बोर्ड्स, मैकडोनल्ड्स का बोर्ड, और यू नो गराज बोर्ड और सम अदर रेस्टोरेंट बोर्ड्स। तो आप 60 माइल्स, 80 किलोमीटर्स, 90 किलोमीटर्स की स्पीड पे, 100 किलोमीटर्स पे आप जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, मोटरवे पे जा रहे हैं। तो वो बोर्ड कितनी कितनी फास्ट आपको देखना पड़ता है। सपोज आपका ध्यान बोर्ड पे जाता है, तो यू हैव लाइक हाफ अ सेकेंड टू लुक एट, और इवन लेस देन दैट, और इवन मैक्स 1 सेकेंड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो 1 डेढ़ सेकेंड में आप सबको पूरा बोर्ड पढ़ना है। जस्ट इमेजिन दैट बोर्ड बीइंग टू कॉम्प्लेक्स। अगर वो बिल बोर्ड पे पूरी स्टोरी लिखी है, 10 पैराग्राफ्स हैं, 10 एड्स हैं, बैनर्स हैं, लोगों के नाम लिखे हैं, तो आपको, आप उसको पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे ना, बिकॉज एंड देन द फॉन्ट विल बी टू स्मॉल ऑल्सो बिकॉज ऑफ टू मच इन्फॉर्मेशन। तो वो बिल बोर्ड्स कैसे होते हैं आपको पता है? इंटेल इनसाइड देयर इज जस्ट वन लाइन, और यू नो मैकडोनल्ड हियर। तो so that you can read it, so that you can, your eyes just see the McDonald's logo and you start salivating because you are hungry. So those are designed in such a way that they follow the principles of usability. So when people visit the websites, even just imagine the same matter, because they are driving at such speeds. Imagine user is in a hurry finding a piece of information. He will land at your website, but imagine he's driving a car at 60 miles, that is 90 kilometers per hour, and he would waste just 1 or 2 seconds. If he doesn't find information in 2 seconds, he will just jump out of your website. He will bounce away, and you just lost one probable customer.
दैट डिड नॉट एक्टिवेट। कस्टमर एक्टिवेशन क्या होता है कि जब वो क्लिक करके उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है या फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। ही सब्सक्राइब्स टू योर न्यूज़लेटर। न्यूज़लेटर के लिए कोई आया था आपके वेबसाइट पे, लेकिन उसको बटन ही नहीं मिला 10 मिनट में, आपको पता ही नहीं चला कि न्यूज़लेटर कैसे सब्सक्राइब करना है। होम पेज देख लिया, कॉन्टेक्ट देख लिया, ब्ला ब्ला ब्ला, ब्लॉग देख लिया, कुछ नहीं मिला, एंड देन ही एग्जिटेड। तो देन यू जस्ट लॉस्ट द कस्टमर जो एक्टिवेट होने के लिए आया था, बट हम उसको दिखा नहीं पाए, राइट? So big black bold, not black maybe, but based on the usability design, but some big call to action should be there. Subscribe to our newsletter, है ना? होम पेज पे ही दिखना चाहिए. So this is one example. What is scanning? Scanning, I already talked about it. So users say that we don't read pages on the website, we scan them. Think of a detective holding a magnifying glass. तो डिटेक्टिव कैसे ढूंढता है? डिटेक्टिव थोड़ा माइन्यूटली ढूंढता है, यूजर्स वैसे नहीं ढूंढते हैं। यूजर्स सर्च एट द स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर। तो वो 1-2 सेकंड वेस्ट करेंगे आपके वेबसाइट पे, उनको मिल गया तो मिल गया, अदरवाइज दे विल जंप टू अनदर। Scanning is important. So three important principles that users follow while visiting the websites is scanning, satisficing एंड मॉडलिंग थ्रू। तो इनका मीनिंग हम देखते हैं। स्कैनिंग हमने देख लिया, ठीक है? स्कैनिंग मतलब हम यूजर्स, एज यूजर्स वी स्कैन द पेजेस, वी स्किम द पेजेस, डोंट read them fully at all because we are passing at 60 miles per hour and we don't have time. Then another attribute of the users जो हंटिंग करते हैं, वेब सर्फिंग करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए नेट पर जाते हैं, वो सेटिस्फाइसिंग करते हैं। सेटिस्फाइसिंग का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइसिंग का मतलब होता है नॉट लुकिंग फॉर अ पिक्सेल परफेक्ट सॉल्यूशन, बीइंग सेटिस्फाइड विद द सेकंड बेस्ट और अ थर्ड बेस्ट सॉल्यूशन। देखो, हमें कुछ खरीदना है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में एक पिक्चर होता है प्रोडक्ट का। अब हम अमेजोन पे जाते हैं, उस प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, तो कई बार हमें वो प्रोडक्ट मिल भी जाता है, फिर हम देखते हैं अरे ये तो 22,000 का है ये तो 17,000 का है, ये तो 10,000 का है। तो कई बार हम प्राइस देख के सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट या अमेजोन चॉइस वाला ले लेते हैं, राइट? तो ये टिपिकली वेब पे भी ऐसा ही होता है। तो जब हम इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, देन टिपिकली वी हैव अ विजुअल ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, लेट्स से समबडी वांट्स टू रीड अबाउट आइंस्टाइन, तो उसने गूगल किया एल्बर्ट आइंस्टाइन वर्क्स और लाइफ और स्टोरी और व्हाटएवर। तो जरूरी नहीं है पहला, दूसरा, तीसरे लिंक में उसको एज इट इज इंफॉर्मेशन मिलेगा जैसा उसको चाहिए। उसके माइंड में एक पिक्चर होगा कि मुझे शॉर्ट स्टोरी मिल जाएगा या आइंस्टाइन के कोट्स मिल जाएंगे, बट द बट गूगल, based on your search query, will return thousands of, actually billions of results. But for us, let's say top 10. In those top 10 also, Google will return many things. As I said, Einstein quotes, Einstein story, Einstein life, Einstein works, Einstein relativity, and so on. तो यूजर क्या करेगा? पिक्सल परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो सेटिस्फाइज करेगा। दे विल मेक ऑप्टिमल choices. They will go with the second best. They will go with the third best. They will take the first reasonable option and not the best one necessarily. तो हमारे साथ भी ये होता है। हम पिक्सल परफेक्ट चीजें नहीं ढूंढते, ऑल्दो हमारे माइंड में वो एक्सपेक्टेशन होता है, बट वी जनरली सेटल, ऑलमोस्ट सेटल, ऑलवेज सेटल विद द सेकंड, थर्ड रीजनेबल बेस्ट ऑप्शंस। व्हाई? बिकॉज वी डोंट हैव टाइम, एंड पिक्सल परफेक्ट चीजें मिलने में टाइम लगता है। इट्स 80-20 रूल ऑल्सो, ठीक है? थर्ड इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ द यूजर, स्कैनिंग, सेटिस्फाइसिंग एंड मॉडलिंग थ्रू। मॉडलिंग थ्रू क्या होता है कि वी डोंट फॉलो मैनुअल्स, वी डोंट फॉलो स्टेप्स और हाउ टू स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 डू दिस, डू दैट, डू दैट, राइट? तो ये कितनी बार हम करते हैं? बहुत रेयरली करते हैं। ऑल्दो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हाउ टू वेबसाइट्स, there are so many how to videos on YouTube to learn to do how to do things. Definitely we go through them, we learn them, but if the topic is completely new, but typically we muddle through. We are natural explorers. Human beings have come from ages, come from Homo sapiens, come from Homo erectus and our ancestral beings who lived in jungles and savannas, who were eaten by wild animals, who used to hunt wild animals. They were natural explorers. They used to collect foods, hunters, gatherers, as human beings have been described. So we have been belonging to the tribes of hunting and gathering. Hunting and gathering tribes didn't follow instructions. They used to muddle through. है ना? दो पेड़ है, रास्ता नहीं है, आपने दोनों पेड़ों को हिलाया, झाड़ी हटाया, रास्ता बनाया, आप आगे चले गए। दैट इज मॉडलिंग थ्रू, रादर देन लुकिंग फॉर अ मैनुअल, रादर देन
लुकिंग फॉर द राइट टूल। आपने एक ब्रांच उठाया, झाड़ी हटा दिया, पत्ती हटा दिया, एंड यू मेड योर वे इनटू द जंगल। तो ऐसे ही है, हम मार्केट में जाते हैं, सुपर मार्केट में, तो हम क्या करते हैं, हम पूरा पढ़ते हैं क्या वहां पे? यू सपोज यू गो टू फिनिक्स और सम TLF मॉल और एनी अदर बिग मॉल, तो वहां पे मैप्स रहते हैं, सबको पता है, असिस्टेंट काउंटर्स होते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ द टाइम्स वी गो टू ईच ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड रीड ऑल द मैप्स देयर? We hardly do that, right? We hardly go to, unless there is some emergency, or unless you want looking for some specific store and you're in a lot of hurry and you don't want to waste time muddling through, then you directly ask for that thing. But typically in malls, in websites, even web surfing or traveling, we muddle through, right? We muddle through. We don't look for exact signboards. We just talk to people, look here and there, open our senses, see what is resemblance, what what you recognize, and then you muddle through. तो हम रास्ता बनाते हैं. We don't figure out how things work in step by step manner. We just muddle through. तो जो वेबसाइट्स पे यूजर आते हैं, वो भी मडल करते हैं. दे डोंट वांट टू, है ना, दे डोंट एक्सपेक्ट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम यू कि लैंड किया, अभी यू एक्सपेक्ट यूजर टू रीच योर एंटायर होम पेज, और पूरे होम पेज पे आपने एक मैनुअल उसको देके रखा है कि पहले ये करो, फिर वो करो, फिर वो करो, फिर वो करो, फिर ये 10वीं स्टेप पे आओगे तब तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा. तो 90% पीपल डोंट डू दैट, राइट? दे जस्ट वांट टू मडल थ्रू कि डायरेक्टली 10th लिंक किधर है, मुझे डाउनलोड नाउ का लिंक दिखाओ फटाफट, क्लिक. सब्सक्राइब का लिंक किधर है, कॉल टू एक्शन किधर है ना? बाय करना है तो प्रोडक्ट किधर है? प्रोडक्ट पेज पे गए, हजारों प्रोडक्ट्स है, सर्च ही नहीं है वहां पे. क्या करेगा यूजर? He'll not be able to find, right? He has to muddle through. तो ये क्यों मैं बता रहा हूँ? Because these attributes need to be remembered when you design your products, pages, websites, app or anything else. क्यों? क्योंकि यूजर्स इस तरह से करते हैं सर्फिंग, यूजर इस तरह से प्रोडक्ट्स को हैंडल करते हैं. दैट इज यूजेबिलिटी, राइट? यूजेबिलिटी का मतलब हमने देखा कि योर थिंग्स शुड बी लर्नेबल, यूजफुल, फ्रेंडली, डिलाइटिंग एंड अदर्स. Person of below average or average intelligence or ability should also be able to get it, what it does, without handling the trouble more than it's worth. तो ये 3 एट्रीब्यूट्स हम ध्यान में रखते हैं फॉर यूजर्स: स्कैनिंग, satisficing and modeling too. Let's see billboard design and then we'll just take a quick check. बिलबोर्ड डिजाइन के बारे में मैंने थोड़ा सा बात किया था. तो बिलबोर्ड डिजाइन जब होता है ना, तो वहां भी यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं. बिलबोर्ड्स हमें पता है सबको. बिलबोर्ड्स यानी जो बड़े बड़े बोर्ड्स हम रोड पे देखते हैं, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स या नियॉन बोर्ड्स देखते हैं, रेस्टोरेंट्स के बाहर बड़े बड़े बोर्ड्स देखते हैं, शॉपिंग मॉल्स के बाहर देखते हैं. दे आर बेसिकली एडवर्टाइजिंग ग्लोइंग और नॉट ग्लोइंग. तो उस पे डिजाइन में भी यूजेबिलिटी कंसिडर होता है. जैसे मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल हमने देखा था. दे आर डिजाइन फॉर स्कैनिंग, नॉट रीडिंग. फर्स्ट थिंग, उस पे कोई स्टोरी नहीं लिखता है, पूरा एपिसोड नहीं लिखा है, नेक्स्ट वेब सीरीज का पूरा स्टोरी नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज यू कैंट रीड दैट, राइट? इट्स सो, इट विल बिकम सो स्मॉल अ फॉन्ट दैट यू विल नॉट बी एबल टू रीड. यू विल हैव टू सी इट फ्रॉम सच अ लॉन्ग डिस्टेंस कि आपको वो बड़े फॉन्ट में ही होना चाहिए. देन टेक एडवांटेज ऑफ कन्वेंशंस, क्रिएटिंग इफेक्टिव विजुअल हायरार्की. तो विजुअल हायरार्की होती है, एक फॉलोइंग पैटर्न होता है, एफ पैटर्न होता है, जेड पैटर्न होता है, जिसमें हम रीड करते हैं. फेसबुक पेज इज इन जेड पैटर्न. Most some of the other websites are in F pattern. Most Americans are following Z pattern of reading. तो काफी सारे वेबसाइट्स F और Z पैटर्न में ही डिजाइन किए जाते हैं. इवन बोर्ड्स, पोस्टर्स, ब्रोशर्स, ये भी Z F पैटर्न्स में डिजाइन किए जाते हैं. देन ब्रेक पेजेस इनटू क्लियरली डिफाइंड एरियाज. तो अगर आपका नेविगेशन कैसा है, ब्रेक डाउन कैसे किया है पेज को, चंक्स कैसे रखे हैं, इजीली विजुअल होना चाहिए. देखो यहाँ पे ये एग्जांपल दिखाया है सुंदर सा, जिसमें एक फोटो है बड़ा सा लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आपको चंक्स दिख रहे हैं तुरंत कि 4 बड़े बड़े लाइंस हैं, पॉइंट्स हैं, ऊपर कुछ मेन्यू है, और एक कलर हायरार्की इज सच दैट यू नो कि लेफ्ट पे पिक्चर है, राइट पे हेडलाइंस, या राइट पे लिस्ट आइटम्स, ऊपर मेन्यू आइटम्स. ठीक है, रादर देन क्रम्पलिंग द होल स्टोरी विदाउट एनी नेविगेशन. देन मेक ऑब्वियस व्हाट्स क्लिकेबल, इंपॉर्टेंट. देन एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस. तो कुछ ऐसी चीज नहीं है उसमें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे. दैट इज अ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डूइंग अ डिजाइन. ऑल्सो फॉर्मेट कंटेंट टू सपोर्ट स्कैनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम स्कैन करते हैं. हमने पढ़ा कि यूजर्स जो हैं वो स्कैन करते हैं, राइट? तो आपका जो कंटेंट है उसका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि आप स्कैन अलाउ कर रहे हैं यूजर्स को, रादर देन देम बीइंग एबल टू रीड थ्रू.
Then keep short paragraphs and use bulleted lists whenever possible. Don't use big paragraphs. Don't write stories. Don't write poems on the billboards. Keep short paragraphs, keep short lines, keep big fonts and font families, and legible typescripts and font families. Use bulleted lists when possible. क्योंकि लिस्ट कैसा है, लिस्ट कैसे टिकटॉक टिकटॉक फटाफट आप देख लेते हैं 1 2 3 4, लिस्ट जल्दी रीडेबल हो जाता है ना, एंड सो ऑन इन दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो अभी हमने क्या क्या देख लिया. लेट्स टेक अ क्विक समरी बैक down the road. We started with usability. We understood what is usability in terms of keywords and with the definition. Then we learned some of the usability principles, like don't make me think. And we learned that pages should be self-evident. We learned to eliminate question marks from the user. Then we are learning how users basically navigate the web. तो हमने 3 attributes देखे that users use to when they surf the web or navigate the web. अभी हम थोड़ा इसमें और आगे जाते हैं टॉपिक में कि और किस तरह से यूजेबिलिटी डिजाइन को कंसिडर होना चाहिए. ठीक है, तो ये सब काम की चीजें हैं हमारे लिए. सो लेट्स पे अटेंशन. ओमिट नीडलेस वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं रेगुलरली बेसिस पे कंटेंट एडिट करता हूँ एंड ऑल आई हैव टू डू इज बेसिकली कट इट डाउन. And that's what happens when you review or edit. So a good editor, it doesn't add anything. A good editor will cut your content down in half typically, and then the remaining will also cut in half again. ये देखो इतना अच्छा यहाँ पे एग्जांपल दिया है. Get rid of half the words on each page and then get rid of half of what's left again. तो अगर 10 पेज का कंटेंट है तो एडिटर सबसे पहले उसको 5 पेज का कर देगा काट काट के, फिर 5 जो बचेंगे उसको फिर से काट के आधा कर देगा. तो यू विल बी लेफ्ट विद टिपिकली 1 or 2 पावरफुल पैराग्राफ्स. दैट्स इट. दैट शुड समराइज द होल थिंग. तो कट कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्लैंडली कट कर देंगे. डोंट गेट मी रॉन्ग. कट करने का मतलब है कि उसको री समराइज करके बेटर लिखेंगे. वी विल यूज मोर इवोकेटिव, मोर पिक्चर क्रिएटिंग, पावरफुल, एसेंसफुल वर्ड्स, सेंसफुल वर्ड्स टू रीराइट इट मे बी. बट डेफिनेटली बहुत सारा नीडलेस फालतू कंटेंट कट हो जाए जो काम का नहीं है. तो ये बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है. जब हम लोग एडिटिंग करते हैं या प्रूफ रीडिंग करते हैं, कॉपी एडिटिंग करते हैं, तो ये ध्यान में रखना चाहिए. या जब आप कंटेंट, स्पेशली फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड कंटेंट क्यूरेटर्स, तो जब ये बनाते हो तो बहुत सारा उसमें नीडलेस होता है. तो खुद से पूछो, ये पैराग्राफ दोबारा पढ़ के खुद से पूछो कि इसमें कितनी लाइन फालतू है या कितने वर्ड्स फालतू हैं, कितने कम वर्ड्स में मैं बिठा सकता हूँ ये चीज दोबारा. व्हेन यू राइट इट, रीराइट इट, रीराइट इट, यू विल कम टू नो दैट लॉट कैन बी एमिटेड जस्ट लाइक दैट. गाइडलाइंस लिखते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, मैनुअल्स लिखते हैं, टेक्निकल राइटिंग लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, सब लिखते हैं, राइट. सभी चीजों के साथ ये एप्लीकेबल है. बुक्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, सब में ये होता है. सबकी सब चीजों में आप जब लिखते हैं पहला, तो वो ब्लैबरिंग वाला कंटेंट होता है. टिपिकली 50% एडिट हो जाता है, उसमें से 50% कचरा होता है, लिटरली वो निकल सकता है. फिर उसके बाद जो बचता है उसमें से भी आधा कचरा होता है. जैसे दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. गेट रिड ऑफ हाफ द वर्ड्स ऑन ईच पेज एंड देन गेट रिड ऑफ हाफ ऑफ वर्ड्स लेफ्ट. तो इससे क्या होता है, आपका कंटेंट पंची होता है. इट हैज अ पंच नाउ. वो डायरेक्टली फेस पे पंच करता है. यूजर जब रीड करेगा तो इट विल हैव एन इफेक्ट. Make content more prominent, reduces noise, ease of scrolling shorter pages. Very, very important because we read, users don't have time. तो अगर आप पूरी कहानी लिख रहे हैं वेबसाइट पे जो 10 पेज की है, तो कितने लोग पढ़ेंगे ना उसको. कितने कितने लोगों के पास टाइम है जो 10 पेज की कहानी पढ़ने का टाइम निकालेंगे. अब उसी कहानी को आपने अगर 2 पैराग्राफ में लिख दिया तो पढ़ सकते हैं. मोर देन 90% आपका रेट बढ़ जाएगा, रीड रेट बढ़ जाएगा, व्यूइंग रेट बढ़ जाएगा, बाउंस रेट कम हो जाएगा. क्यों? जस्ट बाय एडिटिंग कंटेंट इन द राइट. Content editing, very, 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 very important to get your things readable, to get your things across the people and make it famous. Ease of scrolling also. बहुत कम स्पेस यूज होगा, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा यूजर को ज्यादा, एंड इंस्ट्रक्शंस मस्ट डाई. तो सेल्फ एविडेंट प्रिंसिपल हमने देखा था. तो यूजर मैनुअल, इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू लिस्ट फॉर द वेबसाइट और डिजिटल, नो दे शुड डाई. How to manual is not, shouldn't be required for a website. It should be self-evident. It should be self-explanatory at best. ठीक है, तो अभी हमने एक एग्जांपल देखा था बिलबोर्ड्स का. अभी हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं स्ट्रीट साइंस का. स्ट्रीट साइंस सबको पता है, राइट. स्टॉप हियर, रेड लाइट हम देखते हैं, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट हम देखते हैं, स्कूल साइन देखते हैं, जीब्रा क्रॉसिंग देखते हैं. देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रीट साइंस, रोड साइंस. हम सब काफी सारे, हम गाड़ी भी चलाते हैं, ड्राइविंग भी करते हैं, तो स्ट्रीट साइंस हमें पता है. तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें व्हाट आर द गुड स्ट्रीट साइंस. सो दे आर आल्सो डिजाइन्ड इन अ यूजेबिलिटी वे. स्ट्रीट साइंस आर टू आउटसाइड एज टू व्हाट नेविगेशन इज टू वेबसाइट्स. ठीक है, तो वेबसाइट में भी स्ट्रीट साइन होते हैं इन अ वे. लाइक
ब्रेड क्रम्स होते हैं। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, कार्ट का आइकॉन दिख रहा है आपको, सर्च दिख रहा है, फोटो दिख रहा है। ये टिपिकल एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे आपने कोई प्रोडक्ट ओपन किया तो इस तरह का आपको दिखता है, ऐड टू कार्ट, बड़ा बड़ा दिख रहा है, ऐड टू कार्ट, राइट। जेड पैटर्न में डिजाइन है, देखो ये पेज पे अगर आप देखोगे तो, सर्च, गोइंग टू द राइट, कार्ट, डायगोनली डाउन, फोटो, बिग स्टार्स, ऐड टू कार्ट, राइट साइड इन्फॉर्मेशन इज लेस रेलेवेंट, कम लोग पढ़ते हैं। तो स्ट्रीट साइंस डिजाइन करने हो या वेबसाइट डिजाइन करना हो, यू नीड टू फॉलो दी प्रिंसिपल। Lightness of browsing, no sense of scale, direction, or location. What is the difference between a physical mall and a online website? Mall में you have a sense of direction and location and how big is the mall. So you will need to know how much time you'll need to navigate through it. But in the website there is no such thing, right? क्यों हमें 1 घंटा हो जाता है इंस्टाग्राम में, हमें पता नहीं लगता। इंस्टाग्राम इज सो बेसिकली एडिक्टिव, राइट? क्योंकि सेंस ऑफ स्केल नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आगे स्क्रॉल करने के बाद कितना कंटेंट है। अगर आपको कोई बताएगा कि आप एक रील देख रहे हैं और आप 45 मिनट्स तक देखते रह गए और उसके बाद भी देयर इज मोर कंटेंट, बिकॉज देयर इज नो वन टू टेल यू कि नीचे देयर आर इन्फिनिट मोर रील्स फॉर यू टू वॉच, देयर आर लेट्स से 10 मिलियन मोर posts waiting for you to read them in your wall or in your feed or in your होम पेज, राइट? तो ये पता नहीं है तो हम स्क्रॉल करते जाते हैं, और स्क्रॉल करते जाते हैं तो कंटेंट आता जाता है, और आता जाता है तो माइंड में डोपामाइन रिलीज होता रहता है, और रिलीज होता रहता है तो वी गेट एडिक्टेड एंड वी एंजॉय एंड वी लूज अ सेंस ऑफ टाइम, वी लूज अ सेंस ऑफ स्केल, वी लूज अ सेंस ऑफ लोकेशन। हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे थे, कहाँ से शुरू किया था। तो लाइटनेस ऑफ ब्राउजिंग में ये डिफरेंस होता है, ब्राउजिंग वर्सेस नेविगेटिंग अ फिजिकल स्टोर। Then navigation isn't a feature, navigation is the website. So navigation is not to be designed separately. Navigation should be built in into the website so well that users clearly know where I am, where am I. तो देखो मेन्यू होता है वेबसाइट में ऊपर, कॉन्टेक्ट अस है, हमने क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट अस लाल हो जाता है या कोई और कलर ले लेता है, राइट, कंपेयर टू अदर मेन्यू। क्यों? दैट इज योर यू आर हेयर इंडिकेटर। हम बड़े से जूम में जाते हैं, बड़े से मॉल में जाते हैं, बड़े से म्यूजियम में जाते हैं, तो यू आर हेयर के इंडिकेटर होते हैं बड़ी बड़ी जगहों पे, फायर एग्जिट्स होते हैं एंड सो ऑन, सेफ्टी साइंस। तो यू आर हेयर इंडिकेटर ब्रेड क्रम्ब से या मेन्यू कलर चेंजिंग से हमें दिखता है। देन उसमें क्या क्या होता है, टेल अस व्हाट्स हेयर, टेल अस हाउ टू यूज दिस साइट एंड गिव्स कॉन्फिडेंस इन पीपल टू हु बिल्ड इट, बिकॉज इफ द वेबसाइट इज पैथेटिक एंड पीपल टेक टाइम टू यूज इट, they will start cursing the people, they will not trust the company who built the website in the first place. Hence your reputation is at stake. It's a badly designed, हम बिलबोर्ड देखते हैं तो हम गाली देते हैं कि अरे ये किसने बनाया, क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। पेजेस to have a name in the right place and prominent. So every page on the website, every page on your website needs to have a name. It should be in the right place and it should be prominent. Then you are here. I already talked about it. You are here का इंडिकेटर यूजर को आना चाहिए वेबसाइट का, क्योंकि सेंस ऑफ स्केल नहीं है। देखो कोई मॉल में लैंड करता है, चारों तरफ आइज घुमा के देखेगा तो देखेगा ओ माय गॉड इट्स सच अ बिग मॉल, आई विल टेक 4 आवर्स टू नेविगेट इट। बट अगर कोई वेबसाइट पे लैंड होता है तो चारों तरफ गर्दन घुमा के नहीं देख सकता है कि कितना बड़ा वेबसाइट है। हो सकता है वेबसाइट इतना बड़ा हो कि उसका पूरा हफ्ता खत्म हो जाए देखने में। सच इज द पावर ऑफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, वी टॉक्ड अबाउट इट, राइट? देयर इज, एक हफ्ता कम है, यूल आप मेनी ईयर्स तक देखेंगे तो इतना कंटेंट है उनके पास, इतना सारा कंटेंट है, दे हैव बिलियंस ऑफ फीड्स, राइट, लिटरली। बट हमें स्केल का पता नहीं है। तो व्हाट हैपेंस, सो योर पेजेस शुड बी रेलेवेंट। सपोज आपके वेबसाइट में 50 पेजेस हैं और कोई होम पेज पे आता है, तो जिस पेज पे भी है वो कहीं पे फिर क्लिक करता है, यहाँ से वहां क्लिक करता है, वहां से यहाँ जंप करता है। तो देयर शुड बी अ क्लियर सेंस ऑफ इंडिकेटर्स दैट यू आर हियर। Pages need to have a name, they need to be in the right place, and they need to show some breadcrumbs or some you are here indicators that this is where you, ठीक है? So some more principles we saw related to the website and street signs. I think we have few more, some more content to cover. So let's quickly, I'll take a little, uh, basically quick mode on, we'll see. So there is a trunk test. Trunk test क्या होता है? It's like a simple usability test जो हम लोग कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के साथ, हमारे वेबसाइट हो या कोई भी वेबसाइट हो, और यू कैन डू इट विद एनी वेबसाइट। यू कैन चूज अ रैंडम पेज ऑन द साइट। आपने कोई पेज चुन लिया यूजेबिलिटी टेस्ट में, सपोज ब्लॉग पेज ले लिया या कोई भी एक पेज ले लिया, होम पेज ले लिया, उसके बाद प्रिंट कर लिया उसको टिपिकली, और होल्ड इट एज अ आर्म्स लेंथ। आप स्क्रीन पे देख के भी कर सकते हैं, बट प्रिंट करोगे तो भी बेटर है। पूरा पेज प्रिंट कर लिया,
और एज क्विकली एज पॉसिबल 3-4 सेकंड अपने आप को देना है, आपको 3 to 5 seconds टाइम करना है, और उस 5 सेकंड में ये देखो 5 चीजें आप ढूंढ पाते हो क्या तुरंत? आम जितना दूर पकड़ना है पूरे हाथ में, जैसे हाथ को एक्सटेंड करके सामने पेज को, प्रिंट आउट को आपने पकड़ा है, होम पेज को फॉर एग्जाम्पल, और 3-5 सेकंड में आप ये देख पाते हैं क्या सब चीजें? साइट का नाम क्या है, बेसिकली लोगो, पेज नेम क्या है, सेक्शंस कौन कौन से हैं, लोकल नेविगेशन क्लियर है कि नहीं, यूआर हेयर इंडिकेटर सर्च है कि नहीं। तो दिस इज द ट्रंक टेस्ट। ट्रंक टेस्ट मतलब अगर ये फेल हो गए आप इस टेस्ट में, अगर ये नहीं हो पा रहा है आपकी वेबसाइट के पेज के साथ, देन इट फेल्ड द ट्रंक टेस्ट बेसिकली। ओके, now let's quickly see one important thing is home page design. So home page is the prime real estate of anything. Home page of the app, home page of the website, home page of the brochure, फर्स्ट बेसिकली कवर पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, मैगजीन, पोस्टर। आपको पता है कि कवर पेज के लिए फाइट होता है पूरा, कवर पेज के लिए बहुत पैसा देना पड़ता है अगर आपको ऐड देना है। कवर पेज के लिए बहुत प्राइम रियल एस्टेट होता है वो। आपको अगर मॉल में फर्स्ट शॉप चाहिए, एंट्री चाहिए, बिग डोर, बिग एंट्रेंस हाउस चाहिए, हर हर होम पेज का प्राइम रियल एस्टेट होता है, आपको पता है। चौक का लोकेशन है, इफ देयर इज अ इट्स अ क्रॉस रोड लोकेशन ऑफ अ शॉप और अ मॉल और हाउस, you'll have to pay much more extra than other shops and houses. Why? Because it's a prime real estate. क्योंकि लोगों को पहले दिखता है, ज्यादा लोग आते हैं वहां पे, क्रॉस रोड्स है वो, वहां पे बहुत लोग आने वाले हैं। अगर आपको हाईवे पे कुछ शॉप बनाना है तो इट्स मच मोर कॉस्टलियर देन ओपनिंग अ शॉप इन द विलेज और इनसाइड अ मार्केट, डीप इनसाइड द मार्केट। सिमिलरली यू हैव योर होम पेज ऑन द वेबसाइट और ऐप, तो इसको भी प्राइम रियल एस्टेट आपको कंसिडर करना है। अगर आपने होम पेज पे फालतू चीजें रखी हैं कुछ, जिसका कोई मतलब नहीं है, सपोज आपने 4 कॉल टू एक्शंस रखे हैं जिसमें से 2 काम के नहीं है, रेलेवेंट ही नहीं है, तो देन यू आर एक्चुअली वेस्टिंग योर प्राइम रियल एस्टेट। आप बहुत उसको बैडली डिजाइन करके रखे हैं, इसका मतलब। अगर आपका कॉल टू एक्शन रेलेवेंट, तो होम पेज को तो आपको वेरी क्रूशियली डिजाइन करना है, हर एक चीज का जो भी है। होम पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 99% यूजर्स वहीं पे लैंड होते हैं और वहीं से भाग जाते हैं। तो अगर वेल डिजाइन नहीं है होम पेज, तो वहीं से आपका ऐप क्विट करके निकल लेंगे लोग कि चलो ये फालतू है, कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना क्राउडी है। तो होम पेज पे क्या क्या होना चाहिए? तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है कि होम पेज पे क्या होना चाहिए और क्या हो, आइडियली क्या होना चाहिए। मेजरली इट शुड गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट देन कंटेंट विल कीप चेंजिंग। तो सम कंटेंट विल बी परमानेंट। परमानेंट से डोंट गेट मी रॉन्ग कि जिंदगी भर वैसा रहेगा। परमानेंट का मतलब है कि साइट लोगो हमेशा रहेगा, साइट का मिशन, आइडेंटिटी, साइट हायरार्की, रजिस्ट्रेशन फीचर, मेन कॉल टू एक्शन, सर्च, ये सब रहना चाहिए होम पेज पे। बट एज इट इज डिजाइन रहेगा, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट विल कीप चेंजिंग। सो वेबसाइट नीड्स टू बी रिवैम्प्ड एवरी 3 months, एवरी 1 month, एवरी 6 months, राइट? टू री-एनर्जाइज द पर्पस, टू री-एनर्जाइज द लुक एंड फील। वो तो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये आइटम्स सेम रहेंगे वेबसाइट में। नया होम पेज बनाओगे तो भी सर्च आएगा, नया होम पेज बनाओगे तो भी साइट का लोगो आएगा, नया होम पेज बनाओगे तो भी कॉल टू एक्शन आएगा, वेदर इट इज अ रजिस्ट्रेशन और सब्सक्राइब और सम बिग कॉल टू एक्शन विल कम। अब उसके अलावा कुछ कंटेंट ऐसा होगा जो चेंज होता रहेगा, लाइक डील्स एंड ऑफर्स, तो ऑफर्स का विजेट अलग चलेगा। कंटेंट का कोई प्रोमो चला रहे हो आप, सीजनल सेल है तो वो चलता है। आपको पता है होम पेज हमने यूज किया है बहुत सारे वेबसाइट्स का, अमेजोन ऐप हम खोलते हैं तो देखते हो आपके ऑफर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें कॉमन है वहाँ पे, ब्रेड क्रम्ब मेन्यू कॉमन है ना, सर्च कॉमन है, तो वो नहीं बदलता है। पूरा डिजाइन भी चेंज हो जाता है पेज का, लेकिन सर्च रहेगा। देन कुछ टीजर्स होंगे, कुछ एड का पट्टी होगा, कुछ कोई कोई टिकर होगा, तो वो बदल जाएंगे, कंटेंट बदल जाएगा, लेकिन कुछ कंटेंट सेम रहेगा। डिजाइन यस बदलता रहेगा, बट इट्स अ प्राइम रियल एस्टेट। ठीक है, व्हाट एल्स? तो व्हाट एल्स मतलब व्हाट यूजर एक्सपेक्ट फ्रॉम द होम पेज और वेबसाइट। तो दे एक्सपेक्ट दिस, लेट मी रीड इट थ्रू फॉर यू। शो मी व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, यूजर इज एक्सपेक्टिंग दिस, कि यूजर जो ढूंढने आया है उसको मिलना चाहिए। देन एंड व्हाट आई एम नॉट लुकिंग फॉर, दिस may appear contradictory to some of you, कि बोले यार यार शो मी व्हाट एंड आल्सो शो मी नॉट, ये क्या बोल रहा है? तो ऐसा ही है, बिकॉज हम देखो, हम कुछ खरीदारी करने जाते हैं तो हमको ये चाहिए, डेफिनेटली चाहिए होता है कि जो ढूंढने जा रहे हैं वो तो मिले। बट अगर अमेजोन उतना ही दिखाएगा तो भी आप बोर हो जाएंगे। तो कुछ प्रोडक्ट्स आपको और भी दिखने चाहिए, लाइक बेसिकली नॉवेल्टीज। तो अगर आप खरीदने गए कुछ स्टेशनरी और कुछ ग्रोसरी पे ऑफर था 90% ऑफ, अमेजोन ने आपको दिखाया ये 90% ऑफ है, तो आप वो भी खरीद लेते हैं, राइट? एंड यू एक्चुअली एंड अप बीइंग हैप्पी कि चलो अच्छा हुआ मैं गया अमेजोन पे ये खरीदने के लिए, लेकिन वो भी मिल गया। क्योंकि ऐसा एक हिडन डिजायर होता है हमारे मन में
as users, we also want to see what I am not looking for. This may again appear contradictory, but it is what it is. Okay. Then show me where to start. These are all simple guidelines that users think and expect website to behave accordingly. Show me where to start. तो अगर कोई होम पेज है, मुझे पता ही नहीं है कहाँ पे स्टार्ट करना चाहिए, then it's a bad design. So call to action should be prominent. Establish credibility and trust. Very, very important because you have about 50 milliseconds to make a good impression. I said earlier 1 or 2 seconds. That's even a big scenario. तो 2 सेकंड भी कोई रुकेगा आपके वेबसाइट पे? आई डोंट नो. 50 milliseconds is what you have actually. 50 milliseconds कितना होता है यार? 50 milliseconds में आप आइज ब्लिंक भी करते हैं हार्डली. तो 50 milliseconds वाले लोग भी है जो वेबसाइट पे आएंगे 50 milliseconds में, अगर उनको नहीं समझ में आया तो भाग जाएंगे, वो उतनी जल्दी बाउंस हो जाएंगे. So you have such less time to make an impression. So forget them about reading your story or understanding your mission. 50 milliseconds. Just show them a big picture, one call to action. Done. जैसे वो पीछे हमने देखा था स्ट्रीट साइन का, है ना, तुरंत दिख जाना चाहिए सेपरेटेड सेक्शंस. तो इतना क्लियरली डिजाइन होना चाहिए. एंड यू हैव टू डू इट ब्लाइंडफोल्ड. ब्लाइंडफोल्डेड मतलब कि वो 60 माइल्स पे चला रहा है गाड़ी और उसके पास 1 सेकंड है, 50 मिली सेकेंड्स है, तो यू हैव दैट मच ओनली टू मेक एन इंप्रेशन एंड डू ऑल ऑफ दिस. That show me what I'm looking for, not looking for, show me where to start, establish credibility. ये सब करना है कितना? 50 मिली सेकेंड्स में, ज्यादा से ज्यादा 1 सेकंड में एट मैक्स. उससे ज्यादा तो रुकता ही नहीं कोई, 1-2 सेकंड से ज्यादा. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So this will give you how important usability is and why everyone in the world is talking about usability and why people want to hire usability consultants now, why everyone wants to get into UX because of these reasons. Then few guidelines again to design the website or again to design anything. So basically nothing beats a powerful tagline. Tagline should be very very clear. Company tagline should be clear. Welcome blurb should be a blurb. It should not be a mission statement. ठीक है, तो मिशन स्टेटमेंट उठा के हम कॉपी पेस्ट कर दिया आपने वेबसाइट पे सब जगह पे, दैट विल नॉट वर्क. करेक्ट. तो कंपनी का एक मिशन स्टेटमेंट है, एक विजन स्टेटमेंट है, तो कहीं कहीं पे वो दिखेगा आपको, लेकिन ऐसा नहीं कि आपने हर पेज पे वो वेलकम मैसेज की जगह पे वो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया. दैट विल नॉट वर्क. यू हैव टू राइट अ वेलकम लाइन फॉर द यूजर. वेलकम ब्लर्ब इज वेलकम पैराग्राफ फॉर एग्जांपल. देन लर्न मोर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बताया यूजर को 50 मिली सेकेंड्स है, तो अगर उसको रुकना है, वो 50 मिली सेकेंड्स का टेस्ट पास हो गया, अब वो रुकना चाहता है आपकी वेबसाइट पे 5-10 मिनट और, है ना. ही इज हैप्पी विद व्हाट इंप्रेशन यू मेड, फर्स्ट इंप्रेशन. नाउ यूजर वांट्स टू स्टे टू रीड थ्रू योर आर्टिकल, और तो फिर एक लर्न मोर का बटन उसको मिलना चाहिए कि भाई अब आपको डिटेल में पढ़ना है. तो जैसे कई सारे ब्लॉग्स हम देखते हैं तो ब्लर भी होता है एक पैराग्राफ, एंड देन देयर इज अ लर्न मोर ऑलवेज. इंस्टा में भी होता है, रील्स में भी होता है, जहां जहां पे बड़ा इंफॉर्मेशन होता है लर्न मोर होता है. देन यूज एज मच स्पेस एज नेसेसरी ऑलवेज, एंड ऑल्सो डोंट यूज एनी मोर स्पेस देन नेसेसरी. ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा, बट जितना स्पेस नेसेसरी है उतना ही यूज करो. तो कोई बोलेगा ये डिजाइन कर दिया पेज, अभी ये व्हाइट स्पेस का क्या करूं? व्हाइट स्पेस को खाली छोड़ दो ना, व्हाइट स्पेस को कुछ मत करो, क्योंकि व्हाइट स्पेस आपके कंटेंट को सपोर्ट करता है. आप उसको पूरा भर दोगे तो फिर क्या हो गया, फिर वो फिर से खिचड़ी हो गया होम पेज. डोंट यूज एनी मोर स्पेस देन नेसेसरी. तो जितना नीड है उतना ही. लेट्स सी एवरेज यूजर क्विकली. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एवरेज यूजर इज अ मिथ. ऑल वेब यूजर्स आर यूनिक. तो हम एवरेज यूजर के लिए बनाते हैं, बट एवरेज यूजर नाम का कोई यूजर नहीं रहता वर्ल्ड में कहीं भी. Average user is a myth, is just a statistic. All web users are different, dynamic, and they all search for different things in different speeds. And they are all basically idiosyncratic. Idiosyncratic का मतलब होता है कि वो trained user नहीं है. Just think of them as basically dummy users. कहीं से इधर उधर भटकते गिरते पड़ते आ गए आपके वेबसाइट पे. कोई प्लान करके आए हैं ऐसे बहुत कम होते हैं. कितने कितने हमारे जो वेबसाइट रिपोर्ट्स हम देखते हैं ना, तो आप देखोगे कि ओनली 10%, 5% पीपल आर एक्चुअली लुकिंग एंड कमिंग डायरेक्टली टू द वेबसाइट. 90% रेस्ट ऑफ देम आर ऑल इडियोसिंक्रेटिक. कोई गूगल से आ गया, कोई फेसबुक से आ गया, कोई इंस्टा से आ गया, कोई किसी दूसरे लिंक पे क्लिक करके आ गया. दैट इज द वेब ट्रैफिक बेसिकली. वेब यूज इज इडियोसिंक्रेटिक. दे आर नॉट प्लान्ड. दे डोंट कम लाइक a proper plan checklist. There are no right answers to most web design questions. So you have to understand this mindset कि क्या क्या होता है, guidelines क्या है, and what will work, what will not work. Am I confusing the user? Am I wasting the white space or wasting the content? Then usability testing. ठीक है, तो थोड़ा सा हमने ट्रंक टेस्ट पे बात किया था. ट्रंक टेस्ट पे आपने आर्म्स लेंथ पे पेज को रख दिया और देख लिया, और ट्रंक टेस्ट पास होता है कि नहीं. आपने वो लोगो है, सेक्शंस है, यूआर हियर है, ब्लर पे, ये सब तुरंत दिख रहा है कि नहीं वेबसाइट.
तो you will know whether your website or the page passed the trunk test or not. But in case of usability testing, it's a more detailed process. You actually have users test your website, new users. Sometimes in outside India or even in India, they typically what people do, or founders or even other usability folks from or marketing folks from the company, they will take a laptop, they will go and sit in the Starbucks. तो स्टारबक्स या कोई कॉफी शॉप में जाएंगे और वहां पे उनको कुछ कूपन्स बांट, भैया इफ यू स्पेंड 5 minutes ऑन अवर वेबसाइट वी विल गिव यू दिस 10% डिस्काउंट कूपन। आपने बहुत सारे ऐसे देखे हैं एड प्रमोशन, मॉल्स में खड़े रहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो क्या करते हैं, दे आर बाइंग योर टाइम फॉर सम रेफरल और सम कूपन और सम ऑफर। तो जो लोग टाइम स्पेंड करते हैं, दिस इज अ गुड वे टू डू यूजेबिलिटी टेस्टिंग, चीप यूजेबिलिटी टेस्टिंग एक्चुअली। क्योंकि अगर ये प्रॉपरली करना है, इट्स वेरी वेरी कॉस्टली टू हैव यूजर्स टेस्टेड इन अ टू वे glass mirror and then you watching them scratching their heads or opening their jaws in happiness when they look at your app or website। तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के लिए बहुत पैसे लगते हैं प्रॉपर यूजेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। तो पीपल क्या करते हैं, चीप यूजेबिलिटी टेस्टिंग मेथड्स फॉलो करते हैं। तो कुछ ऑनलाइन भी है टेक्निक्स, कुछ इस तरह से कर सकते हैं स्टारबक्स मेथड जैसे मैंने बताया, और कुछ हम खुद कर सकते हैं, डू इट योरसेल्फ यूजेबिलिटी टेस्टिंग, जैसे हमारी टीम में कुछ लोग करते हैं या और भी लोग करते हैं। तो डू इट योरसेल्फ का क्या मतलब होता है कि आप खुद ही यूजेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। जो गाइडलाइंस हम पढ़ रहे हैं, ये सेशन उसके लिए है ना ये सेशन यूजेबिलिटी कंसल्टेंट को हायर करने के लिए नहीं है। ये सेशन का मतलब ये है कि आप यूजेबिलिटी टेस्टिंग सीख जाओ, सब लोग यूजर कैसे सोचता है ये सीख जाओ, ताकि आप कुछ भी बनाओ, डिजाइन करो, उसको रिव्यू करो, एडिट करो, तो आपको ये सारे प्रिंसिपल्स पता होंगे, तो आप खुद ही गलतियां निकाल लोगे, है ना। एंड टेस्टिंग वन यूजर इज बेटर देन टेस्टिंग नन, एंड टेस्टिंग वन यूजर अर्ली इज बेटर देन टेस्टिंग 50 इन दी एंड। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि डिले नहीं करना यूजर टेस्टिंग। तो अगर एक यूजर है ही है आपके पास, तो कम से कम नहीं टेस्ट करने से एक को दो टेस्ट करने के लिए, और अगर 50 को टेस्ट करना है तो लास्ट में करेंगे। ये इससे अच्छा है कि एक को अभी अर्ली तो टेस्ट करने के लिए जल्दी एपीके बनाओ, जल्दी वेबसाइट बनाओ और टेस्ट करने लगाओ उसको, क्योंकि लास्ट में करेंगे, एक करेगा चाहे 50 करेंगे, उतने बग्स मिलेंगे, राइट। यू नीड टू गेट टाइम टू फिक्स इट। ओके, नाउ वी विल see a little more and then we'll wrap up. So थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मोबाइल डेवलपमेंट होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट होता है। मोबाइल डेवलपमेंट में थोड़े से डिफरेंसेस होते हैं, हमने देखा है, बिकॉज द स्क्रीन इज स्मॉल, देन देयर इज नो कर्सर और होवर, then you can't afford to hide your affordances. There are some page designs that will change based on responsiveness and the screen size. Then it should be learnable and memorable, and you have to have done testing on the mobile devices very nicely. तो अगर आपका मोबाइल पे डिवाइस चलाना है, आपको ऐप चलाना है या पेज चलाना है, तो आपको मोबाइल डिवाइस पे टेस्ट करना चाहिए ऑन मल्टीपल डिवाइसेस डेफिनेटली, व्हिच टिपिकली वी शुड डू। Sincerity, that's the hard part. If you can fake that, the rest is easy. Is another nice quote for you. If you can fake sincerity, the rest is easy. The reservoir of goodwill. तो और एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अच्छा, कि रिजर्वायर ऑफ गुडविल। रिजर्वायर ये मैं बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वायर ऑफ गुडविल का मतलब होता है कि यूजर एक ट्रस्ट लेके आपके वेबसाइट पे आता है। समझो यूजर के पास हम 100 रुपए लेते हैं और हम कुछ खरीदने जाते हैं मार्केट में, हम 500 रुपए लेते हैं और कुछ खरीदने जाते हैं, राइट। दूध लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, ब्रेड लेने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं। तो कुछ सामान, एक हमारे पास एक लिमिट होता है, एक बकेट होता है, एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर इन द सेंस हियर इज अवर वॉलेट। कितने पैसे हैं आप लेके जाते हैं, जितना सामान है उस हिसाब से लेकर आते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिजर्वायर ऑफ गुडविल, कुछ वॉलेट ऑफ गुडविल लेकर आता है कोई यूजर जब किसी के वेबसाइट पे जाता है ना, भले ही वो लैंड होता है इडियोसिंक्रेटिकली विदाउट प्लानिंग, वो लैंड हुआ है कहीं से, आके गिर गया आपकी वेबसाइट पे कहीं से आसमान से, लेकिन वो उसके पास एक रिजर्वायर होता है, क्योंकि कोई पैकेट नहीं है ना, उसको पता नहीं है कि ये क्या करता है, XYZ कंपनी क्या करती है, XYZ वेबसाइट क्या करती है। तो उसके पास एक गुडविल होता है, वो खत्म हो जाता है अगर आप उसका ट्रस्ट बेसिकली तोड़ देते हैं। तो जैसे हमने देखा था 50 मिली सेकेंड्स का जो टेस्ट है या 1 सेकेंड का जो टेस्ट है, उसमें अगर वो गलतियां हो गई कि आप उसको समझ नहीं आया क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या किया है, कुछ नहीं समझ आ रहा, वेयर टू स्टार्ट, तो वो आपने उसका गुडविल ऑफ रिजर्वायर ऑफ गुडविल हो जाता है और वो तुरंत भाग जाता है, बाउंस रेट हो जाता है। तो और सिचुएशनल है ये चीज। सिचुएशनल का मतलब है कि हमेशा उतना ही वॉलेट लेके आएगा वो आपके वेबसाइट पे, ऐसा भी नहीं है, उसका मूड खराब भी रह सकता है यूजर का, उसका मूड अच्छा भी रह सकता है, तो ज्यादा गलतियां सह लेगा वो आपकी, बट इट विल नॉट हैपन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आपको पता है, राइट। सो टिपिकली ही और शी विल ऑलवेज हैव लेस टाइम। सिचुएशनल है
यानी कि गुडविल जितना दे रहा है उतना भी नहीं देगा इन सम सिनेरियो। समझो यूजर थका हुआ है और रात को कुछ ब्राउज कर रहा है और उसमें आपकी वेबसाइट और पैथेटिक है और उसको बहुत कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए एंड ही इज वेरी वेरी टायर्ड, उसको दिख भी नहीं रहा ठीक से। तो इट्स नॉट लाइक 60 miles per hour, it's 120 miles per hour. You have to do that blind. The good part about Goodwill is you can refill it. How you can refill it? By showing good features on the website again. By not breaking the trust of the user. If your home page is well enough, यूजर को पता चल गया कि हाँ ये है ये है ये है, चलो मैं और 5 मिनट इनकी वेबसाइट पे स्पेंड करता हूँ। तो जो और 5 मिनट स्पेंड करता हूँ ये क्या है, ये आपने रिफिल कर दिया उसका पेट्रोल, अभी उसकी एनर्जी रिफिल कर दी आपने, यूजर का हैप्पीनेस फैक्टर जो था, गुडविल फैक्टर है, वो आपने रिफिल कर दिया एंड देन ही वांट्स टू स्पेंड more times on the website. Things that will diminish goodwill. Very important. Okay, if you hide the information that I want or user wants, then you will diminish goodwill. If you punish me for not doing things your way, asking information that you don't really need, chucking me, putting sizzle, site looks amateurish. These are some points. We'll not talk about all of them, but they give you some idea. So if the website is stupid or putting sizzle, unnecessary advertisements, or site looks amateurish, it's not looking professional, or showing information that user don't need, then you are basically fooling the user essentially, and you are diminishing the goodwill in a way. Okay, now there is some topic, we'll not talk in a lot detail on this. This is accessibility. ठीक है, एक्सेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, कुछ कुछ लोगों को पता होगा। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है कि देर आर सम पीपल विद सम, लेट्स से, डिसेबिलिटीज, some people are handicapped with from through some body parts or some senses. They have some special abilities, and these differently abled people have some difficulties accessing your website. तो ये भी बहुत कॉमन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे पूरा एक सेशन हो सकता है। बट एक्सेसिबिलिटी आई विल जस्ट टेक 1 minute, विल नॉट टेक मोर टाइम। सो देर आर सम ways you can make your website more accessible. Sorry. Use an accessible template, doing some research, applying alt text to your blurbs, headings correctly, make forms work with screen reading, and so on. Okay. So with that, we will end the session.